Hello students, today we are going to study force and pressure. Okay, in a previous lecture we studied about contact forces, and today we are going to learn about non-contact forces. The contact forces, what are contact forces? The forces which require two bodies to be in contact to be applied. And now for non-contact forces, they do not need any of a physical contact between two bodies to apply. Now take a pair of bar magnets, place alongside of one of the magnet over the three round shaped pencils, wooden rollers as shown in the figure. Now bring one end of the other magnet near to the, तो आपको एक you are supposed to make a roller kind of thing, and now you are supposed to, now what you have to do is put a magnet over here. Okay, you will find that another magnet, the pencil rolls, another magnet is attracted towards the magnet in your hand. So you can see that there is no contact between these two magnets, and then also the magnet is attracted. So without any contact, this magnet gets attracted towards the another magnet, and if the poles of the magnet are similar, you can say N and S, means opposite poles attract each other and similar poles repel each other. Okay, so here what happens, when the opposite poles are there, the magnet will be attracted, and when the similar poles will be there of magnet, it will repel and go away of the first magnet. So this kind of forces which do not require any contact between the two bodies are called non-contact forces. Does the magnet on the roller begin to move or not? Okay, does it always move in the direction approaching to the magnet? No. If the poles are similar, then it will move, it will repel, and if the poles are different, then it will attract. It means that some of the force must be acting between two magnets. तो दो मैग्नेट के बीच में कोई फोर्स लग रहा है. Okay, now you have learned in class 6 that the poles of two magnets repel each other, that like poles attract each other and like poles like pole repel each other and unlike poles attract each other. The attraction or repulsion between two objects can be seen as another form of pull and push. Do you have to bring magnets in a contact? Magnet को contact में लाते हो? नहीं लाते. For object the force between them, a magnet can exert a force on another magnet without being in a contact with it. The force exerted by a magnet is an example of non-contact force. Okay, सिमिलरली उसे मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं जो मैग्नेट से एक्सर्ट होता है वो. नाउ सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज आल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो एक लोहे की चीज़ पे जब आयरन और मैग्नेट फोर्स लगाता है तो वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है कि कभी आपने खेला होगा कि ड्राई हेयर जो सूखे बाल होते हैं उस पर अगर प्लास्टिक की और वो एक्रेलिक की स्केल घुमाते हैं और फिर पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो पेपर पीस ऊपर थोड़े उठते हैं. फिर कभी कभी देखा होगा कि कंबल आप अगर रब करते हो या कंबल सूद के उठते हो और वही कंबल आपकी जो रोंगटे होते हैं, ओके, मतलब कि आपके जो स्किन हेयर्स होते हैं उसके आजू बाजू आते हैं तो वो सारे हाथ खड़े हो जाते हैं. ओके, सो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड दैट इफेक्ट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. वो रोंगटे खड़े हो जाना बोलते हैं, डर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं. तो उसी तरीके से जब भी कोई भी कंबल या ऐसी कोई चीज़ होती है वो बाल से घिसके या ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि फिर वो कंबल अपने शरीर के बाजू में आती है तो क्या होता है, एक क्रैकलिंग इफेक्ट होता है. कभी कभी देखा होगा कि छोटे छोटे स्पार्क्स होते हैं उसके अंदर. ओके, तो इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो देखो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है कि स्ट्रॉ रब्ड विद पेपर अट्रैक्ट्स अनदर स्ट्रॉ बाय रिपेल. तो एक पेपर से एक स्ट्रॉ को रब करो. ओके, एक स्ट्रॉ लटकाओ और दूसरी स्ट्रॉ को पेपर से रब करने के बाद इसके नज़दीक लाओ तो ये लटकी हुई स्ट्रॉ होगी, वो दूर जाएगी धीरे धीरे. ओके, या तो अट्रैक्ट करेगी. ओके, सो नाउ द फोर्स इज एक्सर्टेड बाय चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज ऑन अनचार्ज बॉडी. तो जब भी कोई भी चीज़ को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आता है. तो जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, किसी भी चीज़ को हम रब करते हैं, अगर एबोनाइट रॉड होता है या ग्लास रॉड होता है उसे वूल से या सिल्क से हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं. अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं जिसकी वजह से वो बॉडी चार्ज हो जाती है.
तो वो चार्ज हो जाती है तो दूसरी चार्ज बॉडी को रिपेल करेगी, दूसरी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को रिपेल करेगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगी। एक पॉजिटिवली चार्ज जैसे कि मैग्नेट में होता है कि पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव को लाइक फोर्सेस होता है वो रिपेल ईच अदर एंड लाइक फोर्सेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा होगा, तो रिपेल एंड अट्रैक्ट करेगी। नाउ द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डेफिनेशन दी हुई है, तो सपोज टू लर्न इट। Now, this force comes into play even when the bodies are not in a contact। तो बॉडी कॉन्टैक्ट में नहीं होती तो भी आता है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स therefore is an example of नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसीलिए वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसके बारे में हम 15 नंबर के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अगर आप किसी भी चीज़ को एक पुल होता है अर्थ की तरफ, जो बोलते हैं दो बॉडीज होती है, दो बॉडी होती है तो जिसके मास ज़्यादा होता है, मास के डिपेंड करता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ओके, वेयर m1 and m2 आर masses of the body and r is the distance between them। so you know that a coin or a pen falls to the ground। तो ग्राउंड पे क्यों गिरता है नीचे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरता है कि वो अर्थ होती है उस चीज़ को पुल करती है उसकी तरफ। ओके, लीव्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो फॉल ऑन अ ग्राउंड व्हेन दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ प्लांट। हैव यू एवर वंडर वाई इट इज़ सो। तो ऐसा क्यों होता है, व्हेन द कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड इट इज़ एट रेस्ट एज सुन एज इट इज रिलीज। आपके हाथ में होता है जब तक तब वो जीरो स्पीड में होता है, जब भी हम छोड़ते हैं उसे तो उसकी स्पीड इंक्रीजेज एंड मूव्स डाउनवर्ड। इट इज़ क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ कॉइन अंडरगोज अंडर अ चेंज। तो उसका स्टेट ऑफ मोशन होता है, वो स्टेट में से स्टेटिक में से मोशन में आता है। कैन दिस हैपन विदाउट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो फोर्स बिना फोर्स कैसा होता है, तो ये हमने पढ़ा था फोर्स तो कब होता है, जब भी कोई भी चीज़ का स्टेट ऑफ मोशन कब चेंज होता है, जब कोई फोर्स लगता है। विच इज़ द फोर्स, तो वो फोर्स कौन सा है, द ऑब्जेक्ट और अ थिंग फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ इज बिकॉज ऑफ इट पुल्स देम। तो अर्थ होती है वो उसे पुल करती है, इसकी वजह से कोई चीज़ होती है उसकी तरफ खींचती है। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। तो वो क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट, ऑल ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट पे वो फोर्स लगता है क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट नीचे गिरते हैं। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस, तो हम पे भी ग्रेविटी होता है, वो एक्ट करता है। द टाइम विदाउट आर बीइंग अवेयर ऑफ इट, तो हम पे एक्ट करते हैं पर हमें पता ही नहीं है। द वाटर बिगिंस टू फ्लो टूवर्ड्स द ग्राउंड। द वाटर होता है वो हिल पे से ग्राउंड तक आता है, कैसे, ग्रेविटी की वजह से। एज सून एज, फिर दूसरा कि जब भी हम टैप ओपन करते हैं तो ग्राउंड पे आता है या बकेट में भर जाता है, क्यों, ग्रेविटेशनल की वजह से। वाटर इन अ रिवर फ्लोज डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो रिवर्स का जो वाटर होता है वो भी सीधा नीचे आता है, डाउन, तो ग्रेविटी हो उसे ग्रेविटी की वजह से आता है। ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन अर्थ अलोन। तो ग्रेविटी खाली अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं, इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, तो पूरे जितने भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में सबकी प्रॉपर्टी है। और ग्रेविटी की वजह से ही, सन की ग्रेविटी की वजह से ही हम सन के आजू बाजू रिवॉल्व कर सकते हैं, वेदर इट इज स्मॉल और अ लार्ज, exert a force on every other object, the force is known as gravitational force। तो इसे gravitational force बोलते हैं। Now we should learn about pressure। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। P इज इक्वल टू F अपॉन प्रेशर इज इक्वल टू F अपॉन A। ये चीज़ याद रखनी होगी आपको। ओके, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। किस तरीके यूज़ करेंगे हम दिखाते हैं। तो यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट अ स्ट्रॉन्ग विंड्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म और अ साइक्लोन कैन ब्लो अवे द इवन द रूफ से टॉप्स। तो जो छत होती है वो भी उड़ा जाती है, तेज़ हवा आती है। तो यू ऑल्सो लर्न दैट विंड्स एंड साइक्लोन्स आर कॉज्ड बाय डिफरेंस इन एयर प्रेशर। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि साइक्लोन्स होता है जो वो हवा के अंदर एयर प्रेशर में जो डिफरेंसेस होता है उसकी वजह से होता है। ओके, एक जगह पे प्रेशर ज़्यादा होता है, दूसरी जगह पे प्रेशर कम होता है, तो ज़्यादा प्रेशर वाली एयर होगी वो कम प्रेशर वाली जगह पे ट्रांसफ़र करेगी, जिसकी वजह से बीच के अंदर हम तेज़ हवाएं महसूस कर सकते हैं। इज़ देयर आर एनी रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स। तो प्रेशर और फोर्स के बाद बीच में कोई रिलेशन है, लेट अस फाइंड आउट। ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड। ओके, तो पहले हेड से रखो और फिर टेल से रखो। डिड यू सक्सीड,
ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय, तो ये हेड है वो नीचे रखो और टेल की तरफ से हम स्मैश करते हैं अगर हथौड़ा, तो क्या होगा, तो जाएगा नहीं। बट उसकी टेल होती है वो पैनी होती है, उसका एरिया कम होता है टेल का, इसीलिए वो जल्दी जाता है। ओके, तो कोई डिफरेंस है? तो हाँ, ट्राई टू कट वेजिटेबल विद अ ब्लंट नाइफ, तो जो धार बिना धार की होती है जो उससे वेजिटेबल्स काटने की कोशिश करो, नहीं कटेगा, पर शार्प से करोगे तो कटेगा क्योंकि उसका एरिया कम है। डू यू गेट फीलिंग दैट एन एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, द एरिया ओवर विच अ फोर्स इज अप्लाइड, फॉर एग्जाम्पल अ पॉइंटेड एंड ऑफ अ नेल एंड प्लेज अ रोल इन मार्किंग दिस मेकिंग दिस टास्क। तो जो भी एरिया है, जो जितना छोटा होता है इससे जाता है और ज़्यादा होता है एरिया तो नहीं जाता है, इसीलिए द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज अ सरफेस, यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो क्या है, द फोर्स एक्टिंग इज कॉल्ड प्रेशर। तो कोई यूनिट एरिया, कोई एरिया पे ऊपर फोर्स एक्ट करता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम प्रेशर बोलते हैं। और इसीलिए प्रेशर कुकर बोलते हैं क्योंकि वो प्रेशर क्रिएट करता है। ओके, द प्रेशर की वजह से खाना बनता है। एट द स्टेज वी कंसिडर्ड ओनली दोज फोर्सेज विच आर एक्ट परपेंडिकुलर। तो इस स्टेज में हम सारी परपेंडिकुलर फोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। सरफेस ऑन विच द प्रेशर इज कंप्यूटेड, तो परपेंडिकुलर ही हम देखेंगे, बाकी तो प्रेशर होता है वो एंगुलर में भी लगता है। नाउ आई अंडरस्टूड वाई द पॉटर्स प्लेसेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड। तो ये इसके ऊपर राउंड पीस ऑफ क्लॉथ क्यों लगाता है, क्योंकि प्रेशर होता है वो पूरे हेड के अंदर क्या हो जाता है, फैल जाता है। पर अगर ये पूरा प्रेशर उसके सर पे आएगा, ये राउंड पीस ऑफ क्लॉथ होगा वो नहीं लगाएगा, ये जो उसे बोलते हैं ना डूनी, ओके, वो लगाएगा नहीं, तो क्या होगा, प्रेशर होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं और एक ही पॉइंट पे गिरेगा, जिसकी वजह से इसको ज़्यादा नेक पेन और सब हो सकता है। ओके, नाउ नोट दैट द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर एंड अब वो एक्सप्रेशन, तो जो भी एक्सप्रेशन है एफ इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एफ बाई, जिसके अंदर एरिया है वो क्या है, डिनोमिनेटर में है। स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस। तो जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। फॉर द सेम फोर्स, वही फोर्स से अगर एरिया कम होगा, अगर 100 न्यूटन का दो जगह फोर्स लगा रहे हो तो अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और फोर्स वही होगा बट एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा। द एरिया इज एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड, क्या है, द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ अ नेल इज मच स्मॉलर। तो पॉइंटेड एंड का एरिया कम होता है, जो कील होती है उसका, और हेड वाला ज़्यादा एरिया होता है, इसलिए हेड वाला होता है वो पेनिट्रेट होता नहीं और पॉइंटेड हेड होता है वो पेनिट्रेट होता है। देयरफॉर द सम फोर्सेस देयरफॉर प्रोड्यूस अ प्रेशर सफिशिएंट टू पुश अ पॉइंटेड एंड into the wooden plank. Can you explain now why shoulder bags are provided with a broad strap? shoulder bag, आप जो shoulder bag कैरी करते हो ना, वो कंधों पे उठाते हो स्कूल बैग्स, तो उसके जो बेल्ट होते हैं वो क्यों इतने चौड़े होते हैं, क्योंकि प्रेशर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। पर अगर उसकी जगह पे खाली रस्सियाँ दे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको इंजरी हो सकती है। ओके, नाउ एट वाई द टूल्स मीन फॉर कटिंग पियर्सिंग आर ऑलवेज शार्प। तो कटिंग और पियर्सिंग, कटने के लिए या छेदने के लिए जब भी टूल्स यूज़ होते हैं वो शार्प क्यों होते हैं, क्योंकि उसका एरिया कम होता है, इसीलिए वो अगर एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा मिले, इसीलिए शार्प होता है। तो प्रेशर का दो तरीके से यूज़ हो सकता है, फोर्स को कम करने के लिए यूज़ होता है, फोर्स को ज़्यादा करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। डू लिक्विड्स एंड गैसेज एक्सर्ट प्रेशर। तो लिक्विड और गैसेज प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एरिया, वो भी एरिया पे डिपेंड करता है ऑन विच फोर्स एक्ट। लेट अस फाइंड आउट। तो चलो देखते हैं। ओके, नाउ टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और अ प्लास्टिक पाइप। द लेंथ ऑफ अ पाइप शुड बी अबाउट 25 सेंटीमीटर एंड टेक अ डायमीटर ऑफ 5 to 7 सेंटीमीटर। बराबर, ये चीज़ लो। ऑल्सो टेक अ पेट ऑफ थिन शीट ऑफ अ गुड क्वालिटी रबर, को अच्छा रबर लो। से द रबर बलून, ओके, रबर बलून स्ट्रेच्ड ऑन अ रबर शीट। तो रबर शीट के ऊपर स्ट्रेच करना है टाइटली ओवर द एंड ऑफ अ पाइप। होल्ड द पाइप इन द मिडल कीपिंग द वर्टिकल पोजिशन। नाउ टेल योर फ्रेंड टू pour some of the water in a pipe. Does the rubber sheet bulge out? Note also the height of a water column in the pipe. Pour some more water and observe again the bulge in a rubber sheet and height of the water in a column tape. Repeat. तो आपको क्या करना है, इस तरीके से रबर शीट को इस पे वो लगाना है, पानी लगाना है, यहाँ पे पानी भरना है।
जैसे ही पानी भरोगे ये बल्ज होगा, ये बाहर होगा, बलून की तरफ फूलने लगेगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये लिक्विड हो रहा है, वो इस पर प्रेशर लगा रहा है जिसकी वजह से ये फूल रहा है। ओके, दिस प्रोसेस फॉर फ्यू मिनट्स एंड कैन यू सी द रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ बल्ज ऑफ रबर एंड हाइट ऑफ वाटर। तो हाइट ऑफ वाटर जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे वैसे ये बल्ज होता है वो बढ़ता रहता है, क्योंकि जितना ज़्यादा लिक्विड उतना ज़्यादा प्रेशर। ओके, टेक अ प्लास्टिक बॉटल, यू कैन टेक अ डिस्कार्डेड वाटर बॉटल और सॉफ्टनिंग वाटर, फिक्स सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब a few centimeter long near the bottom as shown in figure 11.15. Now you can also slightly by hitting the end of a glass tube. Now then quickly inserting it near the bottom of a bottle. Make sure that water does not leak from the joint if it is any leakage. Now seal it with a molten wax. Cover the mouth of a glass with a thin rubber sheet. Now as you did in activity 11.8, now fill the water bottle half with water and observe why the rubber sheet fixed in the glass tube bulge this time. Pour some water more and see any changes. दूसरा ज़्यादा पानी रखो और रखो। तो इस तरीके से ग्लास ट्यूब हमें अटैच करनी और यहाँ पे बलून बनना है। जैसे जैसे पानी बढ़ेगा ये शीट बल्ज करती रहेगी और ये बलून ब्लो करता रहेगा, इसमें पानी पड़ता रहेगा। तो ये ऑब्जर्व करना है हमें। ओके, तो क्यों करता है? तो ये लिक्विड जब अंदर भरते हैं तो ये लिक्विड होता है वो प्रेशर क्रिएट करता है जिसकी वजह से बलून होता है वो बढ़ता है। नोट द रबर शीट हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन वन साइड ऑफ अ कंटेनर एंड नॉट ऑन द बॉटम। तो साइड में कंटेनर किया रखा है, बॉटम में नहीं किया है। बॉटम में होता तो हम सोच सकते ग्रेविटी से, पर साइड में किया है फिर भी बल्ज कर रही है। तो इसका मतलब कि इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर वो लगाता है। डज द बल्ज ऑफ अ रबर शीट इन अ केस ऑफ इंडिकेट द वाटर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द साइड्स ऑफ अ कंटेनर एज वेल। तो साइड में भी इसका मतलब ये होगा कि साइड के अंदर भी प्रेशर लगाता है। लेट अस इन्वेस्टिगेट फर्दर। तो ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं, चलो। Take an empty plastic bottle or a cylindrical container. Can you use a tin can or use the plastic bottle? Drill 4 holes around and near to the bottle. Make sure that the holes are at the same height from the bottom. Now fill the water with the bottle and what do you observe? Do different streams of water coming out of the holes fall at a same distance? What does it indicate? तो पहले क्या करो बताएं, ये बॉटल के बॉटम से एक ही डिस्टेंस के ऊपर चारों साइड एक एक होल लगाओ, बराबर, और एक जितने ही साइज़ के होने चाहिए। जब भी पानी भरोगे तो ये सारा स्ट्रीम होगा, ये जो फ्लो करेगा वो एक ही डिस्टेंस पे फ्लो करेगा, ज़्यादा नहीं होगा। अब फिर क्या करना है आपको, सेम ही चीज़, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 4 होल ऐसे स्ट्रेट लगाओ। और फिर देखो तो ये वाला होगा उस पर प्रेशर कम होगा इसलिए वो नज़दीक गिरेगा, ये वाले पे प्रेशर ज़्यादा होगा इसलिए वो थोड़ा दूर गिरेगा, ये वाले पे प्रेशर और ज़्यादा होगा, ये वाले पे सबसे ज़्यादा होगा तो सबसे दूर गिरेगा। इस तरीके से डिफरेंस करेगा। कैन यू नाउ सी द लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड होता है वॉल्स ऑफ कंटेनर पे, कंटेनर की वॉल पे भी प्रेशर लगाता है। डू ग्लासेस ऑल्सो एक्सर्ट, गैसेस भी प्रेशर लगाते हैं। डू दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन अ वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो गैस में भी ऐसा होता है। ओके, व्हेन यू इन्फ्लेट अ बलून व्हाई यू हैव बलून क्लोज इट्स माउथ। तो माउथ क्यों बंद करते हो बलून का? व्हाट हैपन्स व्हेन यू ओपन द माउथ ऑफ इन्फ्लेटेड बलून। तो फूलाए हुए बलून का माउथ खोल देते तो क्या होता है, तो हवा बाहर निकल जाती है। ओके, सपोज यू हैव अ बलून विच हैज़ होल, व्हाट वुड यू बी एबल टू इन्फ्लेट इट। तो आप फुला सकते हो उसे। इफ नॉट व्हाई कैन वी से दैट, व्हाई कैन वी से दैट एक्सर्ट प्रेशर इन द ऑल डायरेक्शन। तो हम क्यों नहीं बोल सकते कि एयर है वो हर जगह पे प्रेशर लगाती है। डू यू रिकॉल व्हाट हैपन्स टू द एयर इन अ बाइसिकल ट्यूब व्हेन इट हैज़ पंचर। तो क्या होता है, हवा के अंदर पंचर हो जाती है तो पंचर में से बाहर निकल जाती है, वो जो हम जहाँ पे भी होल होता है वहाँ से बाहर निकल जाती है हवा। ओके, बाइसिकल की। डू दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन इनर ऑफ अ इन्फ्लेटेड बलून और ट्यूब। तो एयर है, हवा है जो बलून पे अंदर साइड जहाँ पे भरी हुई है वहाँ पे प्रेशर लगाती है। सो गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ इट कंटेनर। तो गैसेस है वो भी उसकी वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करती है। ओके, नाउ लेट अस सी अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। You know that there is an air around us. This envelope of an air is called atmosphere. तो ये envelope of air है जो हमारे अर्थ के आजू बाजू उसे atmosphere बोलते हैं। The atmospheric air extends up to many kilometers about the surface. Actually, technically 800 kilometers. Okay, the surface of Earth. The pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. और वो जो air हम पे pressure exert करती है उसे atmospheric pressure बोलते हैं। Okay.
वी नो दैट अ प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एक यूनिट एरिया के अंदर कितना फोर्स लगता है उसे हम प्रेशर बोलते हैं। इफ़ वी इमेजिन द यूनिट एरिया एंड वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन एंड फिल इट विद एयर, तो पूरा बड़ा सिलेंडर और उसके हवा से भर देते हैं, देन द फोर्स ऑफ अ ग्रेविटी ऑन एयर इन दिस सिलेंडर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक यूनिट एरिया का सिलेंडर बनाते हैं, ओके, और ये यूनिट एरिया पे हवा जितना प्रेशर लगाएगी इसको एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे, ओके। तो इस तरीके से कि हवा कितना प्रेशर लगाती है, जिसकी वजह से हम वो चीज़ें होती है बताए रबर कॉक्स होते हैं जो सक्शन कॉक्स होते हैं, ओके, बिकॉज हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना लार्ज और स्मॉल है। लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड, तो कितना होता है न्यूमेरिकली, ओके। टेक अ गुड क्वालिटी रबर सकर, इट लुक्स अ स्मॉल रबर कप, प्रेस इट हार्ड एंड स्मूथ एंड प्लेन सरफेस, तो ये किसी कांच पे प्रेस करो, ओके। डज इट स्टिक ऑन द सरफेस, नाउ ट्राई टू पुल द सरफेस, कैन यू डू इट, और फिर उसे पुल करने की कोशिश करो। तो क्या होता है कि यहाँ से अगर हम अंदर से हवा निकाल देते हैं, कभी कभी थोड़ा पानी डालते हैं क्या कि हवा पूरी निकल जाए, ओके। ये रबर सकर जो होता है ना उसमें से ये पूरा हवा निकाल दी, तो आजू बाजू की हवा होगी, अंदर तो हवा है नहीं। जब इक्वल प्रेशर होगा दोनों की साइड, दोनों साइड, यहाँ पे अभी क्या है इक्वल प्रेशर है, यहाँ पे भी इक्वल प्रेशर है, यहाँ पे भी इक्वल प्रेशर, इसलिए बाहर है। अभी यहाँ पे क्या होगा कि अंदर की साइड प्रेशर नहीं होगा और बाहर की साइड एटमॉस्फेयर का प्रेशर चारों ओर से इस पर लगेगा, इसीलिए ये चिपक जाएगा। पर हमारा प्रेशर, हम अगर उसको खींच के बाहर निकालते हैं तो हमारा फोर्स जब बढ़ जाता है तो रबर सकर टूट निकल जाता है। एंड यू प्रेस अ सकर, मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कप्स एंड सरफेस एस्केप्स आउट, ओके, सारी एयर निकल जाती है। सकर स्टिक्स ऑन द सरफेस बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्ट ऑन इट, तो आजू बाजू से हवा का प्रेशर उस पर लगता है। टू पुल द सिकर ऑफ द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्जर इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसे पुल करने के लिए जो हमारा फोर्स लगेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। इनफैक्ट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू पुल अ सकर ऑफ द सरफेस इफ देयर इज नो एयर बिटवीन द सकर एंड सरफेस, तो किसी भी इंसान की ताकत होगी नहीं कि अगर जो बीच में थोड़ी भी हवा नहीं होगी तो कि कोई भी इंसान उसे खींच के निकाल सकता नहीं है। डज इट गिव एन आइडिया अबाउट हाउ लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो कितना लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है समझ में आया। इफ द एरिया ऑफ माई हेड इज 15 by 15 सेंटीमीटर, हाउ मच फोर्स एयर विल एक्सर्ट ऑन माई हेड, तो कितना फोर्स लगेगा, ओके। द फोर्स ड्यू टू द कॉलम ऑफ ए हाइट एंड ऑफ एटमॉस्फेरिक एरिया, फोर्स कितना है 15 by 15, ओके। इट इज़ नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास 225 किलोग्राम, तो मास कितना है 225 किलोग्राम, तो कितना लगेगा फोर्स, तो F इज इक्वल टू एम है पता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू एम जी। मास कितना है 225 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय जी कितना है 9.8, यानी कि हम 10 ले लेते हैं, ओके। यहाँ पे देखो ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू एम जी, ओके, जहाँ पे m कितना है, मास है 225 मल्टीप्लाई बाय जी 10 लेते हैं या 9.8 लेते हैं, ओके। तो कितना आया 2250 न्यूटन, इतना फोर्स लगा है। अभी क्या लगा है, इतना सिर्फ फोर्स लगा है। अभी प्रेशर कितना है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ओके। तो इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स कितना है 2250 डिवाइड बाय एरिया कितना है 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होगा 225 होगा, तो 2250 डिवाइड बाय 225, सॉरी 15 इंटू 15 225 होता है, तो कितना लगेगा 10 न्यूटन पर, कितना है सेंटीमीटर है यूनिट, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर लगेगा। न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर का यूनिट है, फोर्स बाय एरिया होगा, ओके। तो ये सम है, इस तरीके से आपको दूसरे सम भी करने होंगे।
फोर्स का mg, g कितना होता है, g 10 ही लेने का हमेशा आपको। अगर g बोला गया होगा यू आर सपोज टू टेक g इज इक्वल टू 9.8 तो 9.8 ले रहे, ये फिक्स्ड वैल्यू होती है। g इज इक्वल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्या होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड, ओके मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास किलोग्राम, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ये सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगा बाद में, ओके। Now the reason why not crush under the air force is the pressure inside your body is also the equal। तो आप ये इतना सारा प्रेशर लगता है 10 न्यूटन का, ओके 10 न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर, इतना प्रेशर 1 सेंटीमीटर पे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर तुम्हारा हेड है सर पे, उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगता है। पर आप क्रश क्यों नहीं हो जाते, आप क्रश क्यों नहीं हो जाते, जिसकी वजह यह है कि आपकी बॉडी के अंदर से भी इतना ही प्रेशर होता है, तो दो इक्वल प्रेशर होता है जिसकी वजह से बच जाते हैं। डिड यू नो? तो ये ऑटो वन ग्यूरिक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 17th सेंचुरी में एक पंप टू एक्सट्रैक्ट एयर ऑफ अ वेसल, तो ऐसा पंप बनाया था जो हवा एक वेसल के अंदर से बाहर निकाल सकती है। विद द हेल्प ऑफ दिस पंप ही डेमोन्स्ट्रेटेड ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर, तो कितना एयर प्रेशर लगता है, ओके। तो ही जॉइंट टू होलो मेटेलिक हेमिस्फीयर ऑफ 51 डायमीटर, 51 सेंटीमीटर डायमीटर के दो ऐसे सिलेंडर थे, उन्हें ज्वाइन करके बीच की हवा निकाल दी सारी। यहाँ पे रबर सील लगा दिया बीच में और इसके अंदर की सारी हवा निकाल दी। और फिर क्या किया, एम्प्लॉयड 8 हेड हॉर्सेस ऑन ईच हेमिस्फीयर, तो यहाँ पे 8 घोड़े, यहाँ पे 8 घोड़े दोनों किए इस चीज़ को खींच के निकालने के लिए, ओके। देन एम्प्लॉयड 8 हॉर्सेस ऑन ईच हेमिस्फीयर टू पुल अपार्ट, सो ग्रेट इज द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर, तो ये दिखाने के लिए कि एयर प्रेशर कितना ज़्यादा है, प्रेशर दैट हेमिस्फीयर कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट, तो इतना प्रेशर था एयर प्रेशर कि ये हेमिस्फीयर थे वो बाहर निकल, वो टूट मतलब कि खुल सके नहीं। यहाँ पे 8 और 8 16 घोड़ों की ताकत मिली, फिर भी ये खुल सके नहीं, इतना एयर प्रेशर खतरनाक होता है या इतना ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट इसके सम्स में भेजूँगा तो आपको देखने होगा, ओके। तो इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी, टिल देन स्टे होम, स्टे safe. Bye bye, take care.